اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل یعنی 1 جنوری سے پہلے والی رات یعنی 31 دسمبر، جسے 31st نائٹ کہا جاتا ہے، 31st نائٹ کو پوری دنیا میں نئے سال کا جشن منایا گیا۔ لیکن نئے سال کے جشن پر دنیا بھر میں الحمدللہ فلسطین کے سپورٹ، فلسطین کی حمایت میں آندولن کیے گئے، اور خبریں آ رہی ہے کہ ترکی سے لے کر امریکہ تک عوام لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر اتر آئی اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں، سمرتھن میں، سپورٹ میں نعرے لگائے اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ غزہ میں اس وقت بھی اسرائیل کا آتنکواد جاری ہے۔ نئے سال پر تل ابیب جو اسرائیل کی راجدھانی ہے، وہ حملوں سے وہ شہر لرز اٹھا، کیونکہ حماس اور مجاہدین نے زبردست انداز میں نئے سال کے موقع پر اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا اور یہ پیغام دیا کہ 2024 تمہیں ایسے ہی ہلا کر رکھے گا۔ غزہ سے صہیونی فوج کی شکست ہوئی، اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ ایرانی جہاز بحر احمر میں تعینات کر دیے گئے۔ خیر، سال نو کے جشن کے موقع پر غزہ مظلوم فلسطین کی حمایت میں ترکیہ کا جو استنبول شہر ہے، وہاں پر ملین یعنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ باقاعدہ فلسطین کے سمرتھن میں راستوں پر نظر آئے۔ اور سال نو 2024 نئے سال کے موقع پر دنیا بھر میں جہاں جشن اور تقریبات ہوئی ہے، عالمی رہنماؤں کی جانب سے کئی اہم اعلانات کیے گئے، اور ان اعلانات میں سب سے اہم اعلان یہی تھا کہ فلسطینیوں کے حق میں آواز ان تمام لوگوں نے اٹھائی اور غزہ میں جنگ بند ہو، اسرائیل کے خلاف باقاعدہ نعرے بھی انہوں نے بلند کیے۔ یعنی یہ خبر اتنا تو بتا رہی ہے کہ دنیا جان چکی ہے کہ اس وقت سب سے بڑا ٹیررسٹ اور آتنکوادی اگر کوئی ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے جاپان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دیوا والے جو گجرات کے عالم دین ہیں،
बड़े आलिम हैं जो अक्सर इन तमाम चीज़ों पर सोशल मीडिया पर बेदारी पैदा करते रहते हैं और लोगों को बताते रहते हैं कि क़यामत करीब है, ये ज़लज़लों का आना, ये सब क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों में से है, अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। कल उन्होंने ही सबसे पहले मुझे ये खबर भेजी कि जापान में ज़बरदस्त अंदाज में ज़लज़ला आया, सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया और बड़ी तबाही जापान में मची है। खबरें आ रही है कि 90 मिनट में यानी 1.5 घंटे में 21 झटके लगे हैं, 33,000 घर बिजली से महरूम हो गए हैं। जापान में बेशुमार इमारतें पूरी तरीके से तबाह हो गई है। राहत रसानी का काम जारी है। आवाम को बुलंद मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई है। जापान में 7.6 शिद्दत का जलजला आया है, जिसके बाद एक साहिली इलाके से सुनामी की लहरें भी टकराई है, जबकि लोगों को फौरी तौर पर बुलंद मकामात पर मुंतकिल होने के आदेश दे दिए गए। जलजले से बड़े पैमाने पर जापान में तबाही हुई है। लोग अब भी मलबों के नीचे दबे हुए हैं, जिन्हें राहत रसानी और निकालने का काम जारी कर दिया गया है। सैकड़ों अफराद की हलाकतों का खदशा है। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे USGS का हवाला देते हुए बताया गया कि दीगर इलाकों से सुनामी की लहरें टकराने के भी खदशात हैं, लिहाजा अवाम को हुकूमती हिदायत पर अमल करने की तलकीन की गई। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है गजा में इजराइल के आतंकवाद को लेकर। जी हाँ, आप देख चुके हैं कि इजराइल ने आतंकवाद का नंगा नाच गजा और फलस्तीन में बर्पा किया है और 22,000 अब बेकसूर आम शहरियों के मरने की खबरें आ रही है। 22,000 और 70,000 के करीब जख्मियों की खबरें आ रही है, जिनमें हजारों की तादाद में फिर कई लोग सीरियस है। खैर, खबरें आ रही है कि अब इजराइल के आतंकवाद को पूरी दुनिया ने देखा है और अब इजराइल के खिलाफ आलमी अदालत, इंटरनेशनल कोर्ट में भी मामला जा चुका है। आलमी अदालत ने गजा में नस्ल कुशी का इल्जाम आयद करने की धमकी दी है, जिससे इजराइल को फिक्र तशवीश लाहिक हो गई है। इजरायली सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और अटॉर्नी जनरल के दफ्तर ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि दी हेग में बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ इजराइल पर गजा की पट्टी में नस्ल कुशी का इल्जाम आयद कर सकती है। यह तशवीश एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब गजा में 3 माह हो चुके हैं और इन 3 माह के दौरान इजराइल ने बेदरेग और अंधाधुंध बमबारी करके 22,000 से ज्यादा सिविल सिटीजन्स, आम शहरियों को मौत के घाट उतार दिया है। इजरायली अटॉर्नी जनरल के दफ्तर ने जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर उनके मुल्क पर गजा में नस्ल कुशी का इल्जाम लगाने के आलमी अदालत इंसाफ के इम्कान पर अपनी तशवीश का इजहार किया। खैर, जो लोग आलमी अदालत इंसाफ का दरवाजा खटखटा रहे हैं वो लोग वाक़तन काबिल मुबारकबाद है, जिन्होंने आगे बढ़कर इजराइल के इस आतंकवाद को आलमी अदालत में ले जाकर पेश किया है। जी हाँ, और अमेरिकी अखबार ने तो यहाँ तक कह दिया है कि गजा में जो तबाही हुई है, आप जानते हैं कि 95-98% गजा ख़त्म हो चुका है और 9,000 के करीब मासूम छोटे छोटे बच्चे, 8,000 के करीब औरतें और कुल मिला के 22,000 के करीब लोग अखबारी अदद के एतबार से शहीद हुए हैं, मारे गए हैं गजा में। तो अमेरिकी अखबार ने तो खुलकर ये कह दिया है कि गजा में जो हुई है तबाही वो दूसरी आलमी जंग जैसी है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट करें। आइए दिन चौथी बड़ी खबर आ रही है वही गजा के हालात को लेकर। आप जानते हैं कि मुजाहिदीन ने जबरदस्त अंदाज में इजराइल को नुकसान पहुंचाया है। इतना नुकसान पहुंचाया है कि इजराइल हवास बाख्ता हो गया, जिसे हम अपनी जबान में
पागल कहते हैं, बाल नोच रहा है, इतना परेशान हो गए। और इजराइल हवास बाख्ता तो हो गया, और इस पागलपन में इजराइल आम शहरियों को भी लड़ने का हुक्म दे रहा है, और जो नहीं लड़ रहे हैं उनको भी मार रहा है। तो खबरें आ रही है कि जंग लड़ने से इनकार पर इजराइल ने अपने ही शहरी को सजा दे डाली, जंग लड़ने के इनकार से। यानी इजराइल में अब लड़ने वालों की कमी हो गई है, जबकि उसके मुखालिफ मुजाहिदीन में हर बच्चा शहादत की तमन्ना लिए हुए हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी बाकायदा इजरायली आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे हैं। और मुजाहिदीन ने तो ये कहा है कि हमारे खून के आखिर कतरे तक हम लड़ेंगे। यहाँ तक कि फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास का भी बयान आया है कि ना हम हिजरत करेंगे, न ही हम अपनी जमीन देंगे, बल्कि हम आखिरी सांस तक इजराइल से लड़ेंगे। यानी इजराइल का मुकाबला जबरदस्त अंदाज में मुजाहिदीन कर रहे हैं। और मुजाहिदीन ने यह भी कहा है, हमास ने यह भी कहा है कि इजराइल का जो वजीर है उसने फलस्तीनियों को जो बेदखल करने का बयान दिया है वो जंगी जुर्म है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फलस्तीनी मुजाहमती तहरीक हमास की जानिब से कहा गया है कि इजरायली वजीर का 20 लाख फलस्तीनियों को बेदखल करने का बयान नफरत अंगेज और जंगी जुर्म है। यह बात हमास की जानिब से जारी किए गए बयान में कही गई है। और हमास का यह भी कहना है कि हमारे लोग मुकम्मल आज़ादी और अपनी ज़मीन और अपने घरों की वापसी तक साबित कदम रहेंगे और लड़ेंगे। आइए आखिरी पांचवी बड़ी खबर भी फिलहाल वहीं यानी फ़लस्तीन के, इजराइल के, हमास मुजाहिदीन के हालात को लेकर आ रही है। आप जानते हैं कि मुजाहिदीन ने कई इजराइलियों को कैद में लिया है, यरगमाल किया है, लेकिन ये भी खास बात है कि मुजाहिदीन उन कैदियों के साथ जो अच्छा सलूक कर रहे हैं उसको देखकर कई इजराइली कैदी इस्लाम कबूल कर रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि नहीं, हमको जो इस्लाम के बारे में और मुसलमानों के बारे में और मुजाहिदीन के बारे में बताया गया वो गलत चीज़ थी। तो मुजाहिदीन के अच्छे अखलाक को देखकर भी वो इस्लाम से मुतासिर हो रहे हैं। और इसके मुकाबले में इजराइल जो आतंकवादी है वो कैदियों के साथ जुल्म कर रहा है, उनको टॉर्चर कर रहा है और बाकायदा उनको गोलियां मारकर मजे ले रहा है, जश्न मना रहा है। यानी दुनिया ने ये देख लिया कि इस्लाम, जी हाँ, मजहब इस्लाम कितना अच्छा है कि मजहब इस्लाम के मुजाहिदीन और लड़ने वाले भी कैदियों पर जुल्म नहीं करते। और दूसरी तरफ दुनिया जिनको शरीफ कहती थी, जी हाँ, वो पता चल गया है कि सबसे बड़े दुनिया के जालिम कातिल हिटलर और आतंकवादी इजराइल है। खैर, जंग बंदी को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है कि मुजाहिदीन ने साफ तौर से यह कह दिया है कि इजराइल से कैदियों की डील और इजरायली कैदियों की रिहाई जंग बंदी के बाद ही होगी। हमास ने साफ लफ्जों में ऐलान कर दिया है, बातचीत मुज़ाकरात जारी है, लेकिन मुजाहिदीन का दो टोक ये ऐलान है कि कैदी तो उसी वक्त छूटेंगे जब मुस्तकिल जंग बंदी होगी। अब मुस्तकिल जंग बंदी के लिए बाकायदा मुज़ाकरात जारी है। इजराइल हमास के दरमियान एक नए एग्रीमेंट पर मिस्र की कोशिशों को गैर यकीनी सूरत हाल ने घेर लिया है। दूसरी जानिब गजा में जारी इजरायली जंग तीसरे महीने में दाखिल हो चुकी है और जंग बंदी का कोई भी इम्कान दिखाई नहीं देता